Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to talk about Heidegger's concept of design and existential analysis. So this video is going to be beneficial for all those students who are preparing for some competitive exams, exams like UGC NET GRF, CUET, UG, PG, and I want to thank you everyone who have subscribed to my channel, liked and given the feedback also. Thank you so much. And those who have not subscribed, please do subscribe, like and comment as I am doing this for you only. So let's start production. Martin Heidegger's philosophy marks a turning point in 20th century existential and phenomenological thought. जो 20th century का existential और phenomenological thought था उसमें एक turning point लेकर आए कौन? Martin Heidegger की philosophy. Okay, now at the center of his magnum opus, this magnum opus, it is his center in his book. The book name is Being and Time lies the concept of design. Now we will study about what is design. So this design is the concept that we can find in the book named Being and Time. Okay, a term which translates to being there. That means design means being there. मतलब आपका होना. So, but carries a much deeper significance. It carries a deeper significance. Significance means importance. Now, for Heidegger, design is not merely another name for human being, as it represents the fundamental way in which human existence is structured, experienced, and shaped by its engagement in the world. So, हाइजिकर के अकॉर्डिंग ये डिजाइन एक नाम नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, कोई दूसरा नाम नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है इसका फंडामेंटल वे जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और हम जब एंगेज करते हैं वर्ल्ड के साथ तो वो हमारे थॉट्स फीलिंग्स को कैसे शेप करता है. ओके, unlike earlier philosophical approaches which show humans detached subjects perceiving an external world. तो हमने देखा कि जो प्रीवियस अर्लियर फिलोसॉफिकल अप्रोचेस थे जहाँ पे वो देखते थे कि जो ह्यूमंस है वो डिटैच सब्जेक्ट्स हैं परसीविंग एन एक्सटर्नल वर्ल्ड. दैट मीन्स कि उन्हें सब्जेक्ट्स के बारे में खुद के बारे में नहीं पता है पर वो वर्ल्ड को परसीव करते हैं जो कि वो तो बाहरी दुनिया है ना. हाइडिगर जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ऑलरेडी बीइंग इन द वर्ल्ड. So Heidegger insists that existence is always already being in the world. So जो existence है वो हमेशा से किसमें है? वर्ल्ड में है. Being in the world. It is always present in the world. Okay. This shapes lays the groundwork for rethinking the nature of meaning, truth, anxiety, freedom and authenticity. सो जब हम बीइंग इन द वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज दिस एंजाइटी, फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, मीनिंग, नेचर ऑफ मीनिंग. So these are the concepts this Heidegger more focused upon, like anxiety, freedom, authenticity. Now, this paper explores Heidegger's conception of design, its key theme, and its implication for understanding human existence. It then turns to some of the main critiques. We all know that all philosophers' theory has been criticized. So here also जो हाइडिगर का philosophy है इसको भी किसी ना किसी ने criticize किया होगा, highlighting both the richness, the limitations of Heidegger's approach. Okay. Now हम देखते हैं ये डिजाइन क्या है और जो क्वेश्चन है अबाउट बीइंग ये क्या है. जो हाइडिगर है वो बिलीव करते हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ बीइंग है दैट इज व्हाट इट मींस फॉर समथिंग टू बी. दैट मींस ये जो क्वेश्चन ऑफ बीइंग है, बीइंग मतलब अगर कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है व्हाई इट एग्जिस्ट. ओके, उसका पर्पस क्या है, व्हाई इट इज देयर. ओके, बीइंग इन द वर्ल्ड दैट मींस बीइंग प्रेजेंट. यू आर लिविंग दैट लिव्ड एक्सपीरियंस ही इज टॉकिंग अबाउट.
had been neglected by Western philosophy since the time of Plato and Aristotle. So ये जो क्वेश्चन ऑफ बीइंग है इसको हमेशा से रिजेक्ट किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है by this Western philosophers just like Plato and Aristotle. Now, philosophers have chiefly concerned themselves with entities as objects of knowledge rather than interrogating the meaning of existence itself. So जितने भी philosophers हैं मोस्टली वो किसके बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें बोलते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, कि जो चीजें होती हैं उनका नॉलेज हमें कैसे मिलता है। ठीक है, बल्कि जो फिलोसोफर्स हैं वो ज्यादा कंसर्न नहीं करते हैं अबाउट दिस इंट्रोगेटिंग, कि जो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, दैट मीन्स जो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है खुद में। ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ बीइंग। सो जो डिजाइन है यहाँ पे एक जो की रोल है वो प्ले करता है फॉर व्हाट, रीअवेकनिंग दिस क्वेश्चन। Human being are unique in that they are the only beings who can interrogate their own existence. So here what we are able to know is that कि जो human beings है कि unique है, जो सिर्फ अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में इंट्रोगेट कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट एनी एनिमल, ओके, क्या उसके पास रैशनल माइंड है? क्या वो कभी इन सब क्वेश्चनों के बारे में सोचता होगा? दीज आर द क्वेश्चंस, बट वी ह्यूमन बीइंग आर यूनिक। हम यूनिक हैं, और हम ही ऐसे बीइंग हैं जो हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं। So design is therefore not an object among other objects. So design जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, बल्कि क्या है, इट इज अ बीइंग फ्रॉम whom being is क्वेश्चन। ये बीइंग है जिसके थ्रू जो ह्यूमन बीइंग्स है, या फिर जो बीइंग यहाँ पे रेफर किया ह्यूमन बीइंग को, ये एक ऐसा बीइंग है जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। This self-reflective nature sets design apart from mere things which are simply present at hand. So ये जो self-reflective things है ना, ये काफी ज्यादा different है from the things which is simply present at hands. That means अगर आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट इन द सेंस अगर कोई टॉय है, ठीक है, किसी बच्चे का खिलौना आपके हाथ में रख दिया जाए, यू नो व्हाट इट इज, आपको पता है ये क्या है, किस चीज का मॉडल है, इन रियलिटी इसका पर्पस क्या होता है, क्या काम करता है, क्या मीनिंग है। पर ये सारी चीजें तो आप बाहरी दुनिया में आप सब कुछ जान सकते हैं, बट ये जो डिजाइन है, डिजाइन इज द, यू कैन से इट इज the thing through which being is getting aware of things. That means you can say design is the only thing through which you can do self reflection. Okay, now this design we will study further in more clear. So, being in the world. What does this Heidegger talk about this being in the world? Heidegger refers to our being in the world as design. Okay, so Heidegger here is saying that design is the thing, or design is the only one who is being in the world. That means who is present in the world. That that design is being there. Okay. Now design comes from the German word being there. जो डिजाइन का जो वर्ड है, दिस डिजाइन वर्ड कम्स फ्रॉम वेयर, बीइंग देयर, और ये कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, and conceptualizes the view that we cannot separate ourselves from the world in which we live or its influences. So here the main focus is on that कि जो डिजाइन है इसके थ्रू हम खुद की एक दुनिया को जान सकते हैं। खुद की दुनिया दैट मीन्स कि आप अपने बारे में जान सकते हैं। आप जो हो एक चीजों को फील करते हो, राइट? So this feeling that you can do by yourself, no other will do for you. Just like that, here
इट इज सेड दैट कि हम जो है डिजाइन को सेपरेट नहीं कर सकते अपने खुद के वर्ल्ड से, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं। नाउ डिजाइन हैज इट्स ओन एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। जो डिजाइन है उसके पास खुद की एबिलिटी होती है कि वो चॉइस कर सके and realize its own potentialities. Choose an authentic and inauthentic mode of being. So डिजाइन के पास कितनी सारी पावर्स हैं। जो डिजाइन है उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो चीजों को चूज कर सके, या फिर जो भी आपको सही लगता है, सही गलत, उसका बीच का डिफरेंस जो है जान सके, और फिर जो अच्छा चीज है उसको चूज करे। और जो डिजाइन है उसको खुद का क्या कहते हैं, खुद की ओन पॉसिबिलिटीज जो है वो रियलाइज होती है उसे, डिजाइन को। By doing these things, they are having two ways. These two ways is authentic and inauthentic mode of being. And by uh, design, what they will do is that they will either choose authentic mode of being or inauthentic mode of being. Okay, the hyphenated phrase being in the world represent the unitary phenomena of our relationship with the world. Now, here what this unitary phenomena means, that the world and the person or a human being are one. It is unitary phenomena. Okay, it is one. It is not different. So to be a part of the world and to be worldly, it is like to be is to be part of the world and to be worldly. That means आपको अगर रहना है तो आपको पार्ट होना होगा वर्ल्ड का, या तो आपको पूरा वर्ल्ड ही होना होगा। ओके, दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर। सो जो हाइडिगर है वो पॉजिट करते हैं कि जो डिजाइन है वो पूरा की पूरा फंडामेंटली क्या है, इन द वर्ल्ड विथ केयर। डिजाइन इज फंडामेंटली इन द वर्ल्ड विथ केयर। दैट मीन्स दिस design is being there in the world with care. Now this care is described as the structure of our being. नाउ जो केयर है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ आवर बीइंग, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है बीइंग का। और ये कैसे रिवील होता है, इन द वेज वी रिलेट टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि हम चीजों से कैसे रिलेट करते हैं। ये जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट यू हैव टू क्लियर दैट design is a thing, according to Heidegger, through which human beings can know their own abilities, and they can know that what they can do or not, whether they can choose a right path, you can say authentic or inauthentic mode of being is there, but it's up to them that which way they want to choose. So ये जो डिजाइन है ये वर्ल्ड में रहता ही है, इट इज देयर इन द वर्ल्ड। ओके, इट्स जस्ट अस जिनको हमें उसे पहचानना होता है। ठीक है, perhaps the most central idea in the Heidegger's account of the design is always being in the world in their well same, इसको हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में बोलते हैं ऐसे। This phrase conveys that human cannot be understood in isolation but only in relation to the world they inhabit. Existence is not a detached observer's stance but an involved presence in a meaningful context. Now जो being in the world है, it only gives meaning, ये तभी meaning देगा जब ह्यूमन बीइंग्स जो है कनेक्टेड रहेंगे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, हम कुछ भी चीज आइसोलेशन में नहीं जान सकते। आइसोलेशन मीन्स बीइंग अनअवेयर ऑफ एनीथिंग। ओके, दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर। एंड हाइडिगर सेज कि जो एग्जिस्टेंस है वो डिटैच नहीं है ऑब्जर्वर्स के स्टैंसेस से, बल्कि वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है in the presence of meaningful context. Okay, so here basically being in the world means that you have to be indulged in the world while
you should also focus on yourself, that how much you know, how much you can do, what is your ability. Through design you can recognize that what are the abilities is there, what are the possibilities, that how I am connected to the world. This world and me are one. Okay, this is what he said here. I hope आपको clear हो. So this existential structure of design. So ये जो है, ये एक existential structure जो बताया है डिजाइन का हाइडेगर ने, उसके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे डिजाइन के ना बहुत सारे ना कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आप क्या है समझ पाओगे कि डिजाइन है क्या असल में. सो दिस थ्रोनेस, थ्रोनेस मतलब फेंक देना. सो हमें सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको यहाँ पे वैसे हमें पता है कि विदाउट आर व्हाट आई से, हमारा बिना परमिशन लिए हमें इस वर्ल्ड में थ्रो कर दिया जाता है. हियर इट इज द थिंग, द मीनिंग इट इज देयर, that we don't have any choice and we born and we take birth in this world without our any choice, that whether really we want to be in this world or not. So यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्रोनेस है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो फाइंड करते हैं देमसेल्व्स कि ये जो थ्रोन कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स थ्रोन इनटू अ वर्ल्ड नॉट ऑफ देयर चूजिंग, यानी कि उनके बिना परमिशन के हमको या फिर यू कैन से दैट वी आर born without any permission, without any choice, situated within historical, cultural and environmental context. जब हम पैदा होते हैं तभी हमारा सब कुछ, हम कहते हैं ना, सब कुछ स्थापित कर दिया जाता है. दैट मीन्स कि आपका कास्ट क्या होगा, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या वो हमसे पूछ के किया जाता है? नहीं ना. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन थ्रोनेस. तो डिजाइन जो है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिजाइन का, फर्स्ट इज थ्रोनेस, एग्जिस्टेंस बीइंग द कंडीशंस ऑलरेडी गिवन. सो जो एग्जिस्टेंस है वो हमें पहले से ही दी गई हुई है. नाउ दिस प्रोजेक्शन, तो जो डिजाइन है वो हमेशा ओरिएंटेड रहता है टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, दैट इफ यू हैव समथिंग नाउ, व्हाट कैन बी द पॉसिबल थिंग यू कैन डू विद दैट थिंग. फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्ले. अब आप इसका पॉसिबिलिटी देखोगे कि इसके साथ में क्या क्या कर सकते हो. अब उस क्ले से आप मटका बना सकते हैं, उस क्ले से आप थाली जैसा कुछ बना सकते हैं, उस क्ले से आप दिया बना सकते हैं. एनीथिंग यू वांट यू कैन मेक. तो ऐसा ही यहाँ पे बोला गया है. So it projects itself into the further and make choices about its own being. जैसे हमने चूज किया कि हमारे पास क्ले है तो हम इसका क्या क्या कर सकते हैं और अपनी मर्जी से हमने उसका बनाया. Just like that, design क्या है? It is always oriented towards possibilities. It projects itself into the future and makes choices about its own becoming. Now this care. केयर मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम यूनाइटेड रहते हैं थ्रोनेस और प्रोजेक्शन में, उसको हम केयर बोलते हैं. दैट मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ दिस थ्रोनेस एंड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड केयर. ओके, केयर इट्स कॉल्ड केयर. डिजाइन जो है हमेशा कंसर्न रहता है विद इन इटसेल्फ, अपने आप के अंदर ही, दूसरों के अंदर एंड वर्ल्ड के अंदर, इन अ वे दैट सैचुरेट एग्जिस्टेंस विथ मीनिंग, सो दैट वो हर चीजों को रिलेट करके उसका मीनिंग जो है निकाल सके, जो बीइंग है. नाउ बीइंग टुवर्ड्स दैट, perhaps the most radical aspect of design is its confrontation with mortality. We all know mortality means being dead. We all know कि human beings है, जो भी नथिंग इज परमानेंट, जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी होगा. जस्ट लाइक दैट इट इज रिटर्न बीइंग टुवर्ड्स दैट, कि जो रेडिकल एस्पेक्ट है डिजाइन का वो ये है, कन्फ्रंटेशन विथ मॉर्टैलिटी, जब उसे पता चलता है कि उसकी डेथ भी है. फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग योर लाइफ विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, पर अचानक से आपको याद आया कि एक ना एक दिन तो डेथ तो आनी ही है. तो एक फ़ियर नहीं आ जाता है आपके हार्ट में या फिर आपके
माइंड में। सेल्फ अवेयरनेस इज accompanied by the knowledge of finitude, which endangers existential anxiety. Heidegger saw this as pushing humans towards authenticity. That means जब आप ये सोचते हैं कि वी आर नॉट परमानेंट, ओके वी आर टेम्पररी, हम टेम्पररी हैं, हम परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं रह सकते इस दुनिया में, तो एक काइंड ऑफ फियर जो है आपके माइंड में आ जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो अपने लाइफ को ऑथेंटिक वे में जीना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है कैंसर का, उसको बोल दिया जाए आप सिर्फ 1 वीक जियोगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, that person will live this 1 week in such a way that he never lived his life in that way. वो ऐसे जिएगा जैसे उसने कभी वो वैसी जिंदगी कभी जी ही नहीं हो। ठीक है, with full of happiness, whatever he wants to do he will do। तो ये क्या है, अपने लाइफ को क्या कर रहा है, ऑथेंटिसिटी दे रहा है, ऑथेंटिक बना रहा है अपने लाइफ को। दिस इज व्हाट दिस हाइडेगर वांटेड टू से हियर। नाउ ऑथेंटिसिटी वर्सेस इनऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होता है, इनऑथेंटिसिटी क्या होता है। मोस्ट ऑफन जो एग्जिस्टेंस है वो किसका फॉर्म लेती है, फॉर्म ऑफ conformity to the they, that means thus men, the impersonal norms of society. Authentic arises when design confronts its own mortality and makes choices based on its genuine self understanding rather than societal expectations। ओके, जब आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के थ्रू आप अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, एक इनऑथेंटिक लाइफ हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथेंटिक लाइफ, इन दैट व्हाट इज हैपनिंग, जब आपको एंजाइटी होती है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है कि हमारा डेथ तो निश्चित है, आप क्या करते हो, अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जीना स्टार्ट कर देते हो, अपनी जो चॉइसेस है होती है बहुत ही जेन्युइनली उसको लेना स्टार्ट कर देते हो। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। ओके, so you have to live your life with authenticity. You should rule your life by yourself. You should not live according to others. Okay. Now, anxiety and freedom, what he talks about this, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है हाइडेगर का व्यू में, वो ये है कि उनका जो ट्रीटमेंट है एंजाइटी का, उस पे फोकस किया गया है। दैट मीन्स द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हाइडेगर्स व्यू इज हिज treatment of anxiety, that is angst. Now, unlike ordinary fear directed at specific threats, external anxiety arises from the recognition of possibility and mortality. This anxiety discloses the groundlessness of existence and reveals the freedom of design to choose its path. जब आपको सेंस होगा that you are not permanent, आप टेम्पररी हो, आपका डेथ भी है, तब क्या होगा कि आपको एक वाइडनेस फील होगी, एक एम्प्टीनेस फील हो गया, और वो जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है ना, एंजाइटी, वो स्टार्ट हो जाएगा वहां पे फॉर्म होना। अब जब आप इस एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को पहचान लोगे, तो क्या होगा कि आप जो एग्जिस्टेंस सच में क्या है उसको आप समझ जाओगे। नाउ व्हाट इट विल हैपन आफ्टर दैट, जब आपको ये समझ आएगा कि एग्जिस्टेंस क्या है, क्या उसका महत्व है, उसके बाद फिर क्या होने वाला है कि आप एक फ्री फ्री हो जाओगे, फ्री ऑफ डिजाइन हो जाओगे, फ्रीडम ऑफ डिजाइन, जिसके थ्रू आप चूज कर सकते हो डिजाइन का पाथ। ओके, सो रिवील्स द फ्रीडम ऑफ डिजाइन टू चूज इट्स पाथ। नाउ अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। So freedom for Heidegger is not the absence of constraints, but the responsibility of own one's choices in light of the inevitability of death। ठीक है,
जो हाइडिगर है वो बोलते हैं कि जो फ्रीडम है ना, वो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी चॉइसेस ले रहे हो, उसका जो भी रिजल्ट होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? आप ही रहोगे। और आपको ये भी पता है रहना चाहिए कि आपका जो डेथ है, उसको हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज देयर इन द वर्ल्ड। ओके, so that is why it is written the responsibility to own one's choice in the light of inevitable of that। आपको पता है कि आपका डेथ जो है निश्चित है, तो आपको जब ये पता रहेगा तो आप जो भी चॉइसेस लेंगे वो जेन्युइन होंगे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप खुद लोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम। Authentic existence thus requires embracing finitude and exercising freedom meaningfully. Okay, now what are the things that Heidegger faced criticism upon design? So, critiques of design. What were the criticism? Despite its originality, Heidegger's account of design has drawn substantial criticism. First is individualism. That means जो critique है वो बोलते हैं कि जो हाइडिगर है वो क्या करते हैं? अंडर प्ले करते हैं सोशल डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स हियर ही इज फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअलिज्म, खुद के बारे में सोचना है, अपनी खुद की जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सोशल डायमेंशन है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं कौन? हाइडेगर। while he emphasizes the they, he does not fully account for historically political and collective determinants of human life। यहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्या एम्फेसाइज क्या कर रहे हैं? Emphasize the they, that means the society is not fully account, that means that society is not wholly account for what? Historical, political and collective determinants of human life। that means society यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रही है उनके लिए। Okay, now the second criticism is abstractness। Abstractness means पूरी तरह से सही होना चाहिए, 100%। Okay, correct, एकदम correct होना चाहिए। The terminology and conceptual style of being and time make it naturalistically difficult। So ये जो कॉन्सेप्ट है और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज किया गया है बीइंग एंड टाइम में, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। This had led to charges that Heidegger's reflection, while deep, are removed from concrete lived experience। That means जो हाइडिगर का रिफ्लेक्शन है वो इतना डीप है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं उसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, उसको ही हटा दे रहा है, और वो इतना डीप चला जा रहा है जहाँ पे जाना इज नॉट गुड। Okay, that you have to be in isolation to feel that, what to say, that design। ओके, आपको वो एकदम आइसोलेशन में लेके जाते हैं जब आपको एंजाइटी के बारे में फील होता है, जहाँ पे आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और एंजाइटी जो है वो फील होता है। तो तब जाकर आप क्या है अपने जेन्युइन चॉइसेस को चूज करने लगते हैं और फिर अपना ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे तो आप जो नॉर्मल लाइफ होती है उसको ही आप रिमूव कर दे रहे हो। दिस वाज द सेकंड वन। नाउ द थर्ड वन इज ambiguity of authenticity। Ambiguity we all know, more than one word is called, more than one meaning, it is called ambiguity। तो जो नोशन है ऑथेंटिक लिविंग का, इट कैन अपीयर वेग। वेग मीन्स अनक्लियर, इवन डेंजरस, potentially excusing harmful behavior if claimed as one's authentic self। So जो ऑथेंटिक लिविंग है यहाँ पे अनक्लियर है, ये डेंजर भी हो सकता है क्योंकि ये हार्मफुल बिहेवियर को एक एक्सक्यूज दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बोला ना आपको कि आपको चॉइस करना है, so it should be genuine। But if someone is having, uh, according to them, the genuine choice is that to murder someone, so what is happening here?
So it can be a harmful behavior that will excuse in the field of this authenticity. Okay. Now, the fourth one is practicality. It is impossible to do it in practical manner. So, Heidegger provides a penetrating analysis of existence but offers few practical guidelines for ethical, political, and social life. उन्होंने सिर्फ एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया थोड़ा सा, पर इन्होंने ये प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं दिए पूरी तरह से, सिर्फ कुछ ही दिए। ना ही इन्होंने प्रैक्टिकल गाइडेंस दिए कि हाउ वी शुड फॉलो ethical, political and social life. These were the criticism that he faced. Now the critique of technological civilization, जो कि हाइडिगर जो है इसको क्रिटिक करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। ओके, नाउ हाइडिगर वांट्स दैट कि ये जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू है, क्या करता है ये? अटैक्स एवरीथिंग दैट इज, treating it as orderable and calculable, and thus endangers the capacity to experience the world as meaningful or mysterious. That means जब टेक्नोलॉजी होती है दुनिया में तो क्या होता है? It try to control everything. We all know we are in the world where AI is controlling everything. Even your photos are made up by this AI. If you will upload one photo, you will say and you will type some more things that how you want to be your photo, that it will create for you. Now, the thing is happening here that you are being controlled by AI. That is why this was also the reason that he was always criticizing the technological civilization. So here it is said that this technological civilization treating us as a orderable and calculable, and it endangers the capacity to experience the world as meaningful and mysterious. That means अगर हमको सब कुछ टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम रियल में उसको एक्सपीरियंस कब करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहस्य में है, उसको तो हमें एक्सपीरियंस करके ही पता करना होगा ना। जस्ट लाइक दैट ही इज सेइंग हियर, सो जो डेंजर है इज नॉट जस्ट प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल environmental or social harms, but existential also. Technology can lead to forgetting deeper modes of relating to reality and to oneself. However, Heidegger does not propose rejecting technology outright. Rather, he urges a new relationship to it, grounding in awareness of its limit and dangers. Here he's saying कि जो through this technology, what will happen कि जो पीपल है अपने बीइंग के बारे में ही भूल जा रहे हैं, यानी कि अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ही भूल जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रील चलाते हैं, तो आप रील चलाते जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और एक टाइम भी एग्जिस्ट करता है और आपके भी कुछ काम है, आप काम करते हैं, आपके बहुत सारे एक्टिविटीज है दैट यू हैव टू डू। बट जब रील चलाने बैठते हैं आप, तो अपने आप को ही भूल जाते हैं। दैट इज व्हाट इट इज सेड दैट टेक्नोलॉजी कैन लीड टू फॉरगेटिंग बीइंग। दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज इन क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। हु? हाइडिगर। ये चीज तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगी हाइडिगर की। नाउ लेट्स गो into this conclusion. It is little bit big, but it will give you an understanding about his concept. So, Heidegger's concept of design represent a profound reorientation of philosophy from abstract metaphysical speculation towards phenomenological description. Now, phenomenology, what is this phenomenology? It is the study of consciousness. So, description of human existence. By emphasizing being in the world, anxiety, and being towards it, authenticity, Heidegger illuminates dimension of life that had been overlooked in traditional philosophy. His work profoundly impacted existentialism, hermeneutics, deconstructions, and postmodern thought. So, we all know that he talked about being in the world, that design is always there. We have to confront that, means we have to know it. Okay.
through doing self introspection, self reflection, एंड जो बीइंग टुवर्ड्स डेथ है, जब हमें पता चलता है कि हमारी भी डेथ है, उसके बाद क्या होता है कि हमें एक्जिस्टेंशियल एंजाइटी होने लगती है। उसके बाद फिर हमें अपने ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम अपना लाइफ जो है अच्छी तरह से जेन्युइन वे में हर चीज को चूज करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेड हियर। बट इनकी जो फिलोसफी है, काफी ज्यादा अलग अलग फिलोसफी को भी इम्पैक्ट की है। फिलोसफी लाइक दिस एग्जिस्टेंशियलिज्म, this hermeneutics, deconstructions, and this postmodern thoughts. At the same time, Heidegger जो emphasize करते हैं individual existence पर, his dense language and the abstractness of his categories have drawn sustained criticism. Nevertheless, design remains one of the richest and most challenging concepts in 20th century philosophy, continuing to provoke debate on what it means to exist as human. Okay, so he totally emphasized on individual existence, and he also emphasized on the design, that it is always remaining as one of the richest and most challenging concept, okay, that we can found in the 20th century philosophy. And it's still existing the debate about the existence of human. So here we are completing this Heidegger's concept of design. Thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like, and comment. Bye bye everyone. Take care of yourself.